Out. नो सर. नो सर. કર્યું જ નથી તો ક્યાંથી ડાઉટ કે કર્યું. સર તમારા અંદર ફેસ કેમ ચાલુ છે ઓલા એપમાં પણ? ફેસ ફેસ કેમ અંદર એપમાં પણ રેકોર્ડિંગ થાય છે? હા સર. મન એટલે હું ઝૂમમાં રેકોર્ડિંગ નથી કરતો, હું મારા સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગમાં રેકોર્ડિંગ કરું છું. અચ્છા. બસ એટલે કાંઈ ઝૂમનું બહુ ધીમું છે, મને નથી ફાવતું. ઉપર લખેલું આવે છે. તો હવે लास्ट टाइम एक वस्तु मैं नोती की थी, थोड़ा सा GCDHCF प्रॉब्लम सम्स अगर नहीं देखे हैं सॉल्यूशन तो प्लीज़ देखो, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से अलग आंसर आने के चांसेस बहुत है. सो दीज प्रॉब्लम सम्स वर टेकन फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज ऑफ CBSE एंड दे आर गुड वंस. तो भले होमवर्क किया हो या ना किया हो, होमवर्क के प्रॉब्लम सम ज़रूर देख लेना एक बार. So one small thing which you need to remember is whenever I ask what is the highest common factor of 13 and 39, 13, but what you have to notice is अगर छोटा नंबर पूरा का पूरा बड़े नंबर के अंदर है, 13 is inside 39, 13 3s are 39, तो HCF you can directly write as the smaller number. ये एक universal truth है that if there are two numbers and one number is inside the other, which is a smaller number is inside the bigger number, smaller number is highest common factor. That is one thing. ये थियरी में कैसे पूछ सकते हैं? ऐसे R is a फैक्टर ऑफ M, HCF RM. तुम सिर खुजाते रह जाओगे कि पूछा क्या है, बट ऊपर जो है वो सेम चीज़ है. 13 इज अ फैक्टर ऑफ 39, मतलब 13 39 के अंदर है तो HCF 13 है. वैसे R इज अ फैक्टर ऑफ M, HCF इज R. दूसरा कॉन्सेप्ट, मान लो नहीं पता कि 13 और 39 कैसा होता है, एंड यू स्टार्ट द नॉर्मल प्रोसीजर. बिग नंबर इज इक्वल टू स्मॉल नंबर मल्टीप्लाइड बाय समथिंग प्लस समथिंग. 13 3s are 39 प्लस 0. पहले दड़ा के 0 आवे, 0 ने ऊपर कहीं छेद नहीं, तो HCF सू, HCF स्मॉलर नंबर. इसमें भी वही याद रखना है, इफ यू गेट अ 0 इन द फर्स्ट टाइम then highest common factor is the smaller number itself. So HCF of 13 and 39 is 30. दूसरी चीज, 3 नंबर का HCF कैसे निकाल? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स. तो जय वीरू वाला जो सम था, जय वीरू एंड गब्बर, तो जय का स्टेप था 100, वीरू का 75 या 85 और गब्बर का 75. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स बाय यूक्लिड्स, यू हैव टू डू यूक्लिड्स ऑफ एनी 2 नंबर्स. 3 में से कोई भी 2 नंबर का यूक्लिड्स करो. सो आई एम टेकिंग 75. So 75 ones are 75, बचा 25. 25 3s are 75, बचा कुछ नहीं. Therefore highest common factor of 100 and 75 is 25. तो ये तो 2 नंबर हुए, अभी 85 बाकी है. 85 और HCF का HCF निकाल. So second round में we have to find out highest common factor between 85 and the HCF of other 2 numbers. 85 is equal to 25 into 3 plus 10. 25 is equal to 10 into 2 plus 5, and 10 is equal to 5 into something plus something. 5 2s are 0. तो 0 आते ही
0 के ऊपर का नंबर इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट दिस टाइम इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल थ्री नंबर्स। तो 3 नंबर का HCF इज 2 टाइम्स यूक्लिड्स मेथड। अगर ये फैक्टराइजेशन होता तो इट वुड हैव बीन 100 के फैक्टर्स 2255, 75 के फैक्टर्स 355 और 85 के फैक्टर्स 5 and 17। चूज व्हाट इज प्रेजेंट इन ऑल थ्री। 5 5 5, nothing else is present in all three, therefore highest common factor is 5. LCM of three numbers, it's very easy, you have to factorize them together. This is not a big deal, you already know it. One more thing, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ. So HCF, LCM, problem sums we have seen. Chapter presentation कहाँ है? ये formula, there is a formula, you write it down. A into B is equal to HCF of AB multiplied by LCM of AB, जो मैं जनरल फॉर्मेट में कहता हूं नंबर इंटू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. फॉर एग्जाम्पल, I take number 4 and 14. 4 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2. 4 के अंदर एक 2 है, 14 में एक 2 है, 2. एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 ना टेबल में અને 14 ના ટેબલ માં આવવા વાળી વસ્તુ नहीं पता है तो कैलकुलेट करो. 2 2 4 7 28. Now check, number into number 4 into 14 56 होता है और 2 into 28 भी 56 होता है. So this is a universal truth that number into number is HCF into LCM, and sometimes you can use this and find out the missing number very easily, or missing HCF, LCM, whatever you want. Use Euclid's, prove that. Army contingent, Euclid's, prove that. Easy. क्या है ये? Exercise 1.2 का पहला question is express the numbers as product of its prime. Product of its prime मतलब factorization, and factorization is nothing but, you already know it, 5005 का factorization करना है तो line draw करो. 5 1 1 5 2 10. ओह 5 से होगा ही नहीं. 2 से ट्राई करो, नहीं होगा. 3 से नहीं होगा. 4 5 6 7 ट्राई कर सकते हो. 7 1 7 30. 7 4 28 21. 7 into 143. और 143 13, हाँ 13 11 and 11 1. This is called factorization, which you all know. बड़े नंबर है तो बाय हार्ट कर लो क्योंकि टेक्स्ट बुक का सम है. फाइंड, वेरीफाई क्या है? फाइंड LCM, ओके. Find HCF, okay, and verify that LCM into HCF is product of two numbers. तो बहुत सिंपल है. 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो जो 13 है, और 26 और 91 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो. 13 2
13 sevens are 27, 13 14s are 182. So LCM find किया, HCF find किया, and to verify you have to simply do LHS RHS. Left hand side is equal to LCM into HCF, 182 into 13. 2366, and RHS is equal to number into number, 26 into 91, 2366, hence verified. So no big deal. 3 नंबर के LCM और HCF which I just told you by using prime factorization method. अगर method लिखा हुआ है तो वही करना पड़ेगा compulsory, but if they have not written which method, you can do whatever you want, like statistics. See, this is what I was talking about. How do you use the formula number into number is equal to HCF into LCM? Given that HCF of 306 and 657, तो number directly नहीं दिए हैं, you have to take it out. Is what? 9. Find LCM. हो गया. It's very easy. 9 को सामने भेज दो, calculate कर लो. Easy सा. But remember, numbers are inside the brackets. This is your first number A. This is your second number B. एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के आंसर बताओ. HCF of A and B is what if A and B are both prime numbers? 1. ये थियरी क्वेश्चन है, इसको बाय हार्ट कर लो कि अगर दो प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर निकालने बैठोगे तो कुछ नहीं निकलेगा. प्राइम नंबर्स आर 2 and 3, कुछ कॉमन नहीं है. प्राइम नंबर्स आर 7 and 5, कुछ कॉमन नहीं है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. सेम क्वेश्चन में HCF की जगह LCM पूछूं तो आंसर क्या है? The numbers multiplication, दोनों नंबर का multiplication. प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. बट लिखोगे क्या? LCM of AB is what if A and B are prime? AB, the product of the numbers. AB नहीं, कथा नहीं करनी है. You don't have to explain yourself. You have to write the answer. Answer is AB. मतलब वो हो गया अपने आप प्रोडक्ट. Check whether it can end with a 0. ये बकवास. Revision. A quick revision of all 9 standard things which we have learned about rational, irrational numbers, etc. तो revisiting irrational numbers. मैं अभी 9th में नंबर सिस्टम का रिवीजन चल रहा है तो वहां पे भी यही करवाया. The world of numbers is called real numbers R. और रियल नंबर्स का सबसे छोटा डेटाबेस नेचुरल नंबर्स का है N. नेचुरल के बाद होल W, होल के बाद इंटीजर Z, इंटीजर के बाद रैशनल Q, और बैंडविड्थ की दूसरी तरफ है इरैशनल नंबर्स. So real numbers are divided into two parts. This side, left side, there are 4 families which together are rational, and this side is irrational. Natural number, as we all know, it is starts from 1 and goes on to infinity. Whole number में एक 0 extra होता है and again it goes to infinity. Integers में negative numbers are included, all negative numbers, but round figure होना चाहिए.
and rational number contains two varieties. Of course 1 2 3 0 -1 -2 3 तो सब है ही, बट दूसरी दो चीजें हैं डेसिमल डेसिमल and fraction p by q. So 2 by 3 is a rational number, -4 by 11 is a rational number. तो नेगेटिव पॉजिटिव बट p by q. और डेसिमल में कितनी वैरायटी है? दो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग 3 नॉन टर्मिनेटिंग तीन भी है, दो भी है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हाँ, तो सिर्फ रैशनल नंबर के अंदर डेसिमल में दो वैरायटी है, बट टोटल तीन है. So decimal numbers of rational is terminating and non-terminating recurring. So 2.5 is a terminating number, but 2.555555 dot 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 is a non-terminating recurring. अब irrational numbers को देखें. How many varieties are there? पाई 5. पाई आदित्य 2/7 सर मारो हाँ, मैं रोहित सर को आप रोहित सर को फोन करोगे, मेरा लेक्चर चालू है. हाँ है, हाँ, थैंक यू. सॉरी, આદિત્યના જ પપ્પાનો ફોન હતો. તો હા, કેટલા કીધા? पाई रूट पाई टाइप कितनी है? 3 रूट रूट रूट्स जिनका आंसर नहीं है. Non-terminating, रूट non-recurring. 4 नहीं चलेगा, क्योंकि रूट 4 2 होता है, बट रूट 41 चलेगा. रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 9, तो सब रूट्स आएंगे. दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना रिपीट होते हैं ना खत्म होते हैं. 5.101001000000 डॉट डॉट डॉट, याद है 9 स्टैंडर्ड? देयर इज अ स्पेसिफिक हाँ, there is a specific fancy method of writing them. 62.57 557 557 dot dot dot. तो थर्ड क्या है? पाई पाई, स्पेशल नंबर्स, जैसे कि पाई. 11 12 साइंस लोगे तो शायद और 2-4 सीखने मिलेंगे. फिलहाल पाई. सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स and rational irrational. P by q to decimal, decimal to p by q, etc. we will see quickly. Then in the end we will start prove that. Any questions in this? नो सर नो सर. Prove irrational बहुत जरूरी. लिखना शुरू करो मेरे साथ. लिखो √2. और टेक्स्ट बुक में इतनी खराब मेथड है कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो बेस्ट है, वही याद रहेगा. सो राइट डाउन prove √2 irrational and copy the sum with me. Let √2 is equal to a by b be a rational number. √2 को irrational प्रूव करना है, तो हम उल्टा शुरू करते हैं कि मान लो कि √2 रैशनल है, और अगर √2 रैशनल है तो दुनिया के सारे रैशनल नंबर्स p by q फॉर्म होते हैं. ये 1 भी 1/1 है, ये 3/1 है, 3/1 -2/1, 2.5 is actually 25/10. So all rational numbers are p by q. और उसमें भी एक कंडीशन है, b cannot be 0 and highest common factor of a and b should be 1. ये कंडीशन ही मेन है. तो हमने कहा मान लो कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी, जो रैशनल नंबर है, मतलब b 0 नहीं है और HCF 1 है. b सामने मल्टीप्लाई करो तो √2b इज इक्वल टू a. स्क्वायर बोथ साइड्स, √2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. Now I am going to take a pause and explain you something about किसके अंदर क्या है. किसके अंदर क्या है. Can I write
2 into 3 square is equal to 18? Yes, sir. It's correct. 2 into 3 square is equal to 18 का मतलब है 2 divides 18. 2 18 को डिवाइड कर सकता है और 18 इज डिविजिबल बाय 2. ये डिवाइड्स का सिंबल है विच इज अ स्ट्रेट लाइन. फिर मैं ये भी लिख सकता हूं 3 स्क्वायर डिवाइड्स 18, क्योंकि 18 के अंदर 3 स्क्वायर भी है. और अगर 3 स्क्वायर कैन डिवाइड 18, 3 कैन ऑल्सो डिवाइड 18. एंड 3 2s are 6 can also divide 18. 5 2s are 10 का मतलब है 5 divides 10, 2 divides 10. By this logic 2b square is equal to a square का मतलब है 2 divides a square. और 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो गारंटीड 2 a को भी डिवाइड कर सकता है. दैट्स योर पहला पड़ाव. ये तुम्हारा पहला पड़ाव है, यहां पे 1 लिखना है. अब वापस लेट एंड कीप अ हैबिट टू राइट इट साइड बाय साइड, तो ये कंपैरिजन इजी होता है. लेट a इज इक्वल टू 2a1, 1 नीचे और छोटा. So let a is equal to 2a1, square both. A square is 4a1 square. But a square तो 2b square था. ऐसे लाइन करो और a square की जगह पे 2b square. 2b square is equal to 4a1 square. 2 and 4 कट होंगे. b square is equal to 2a1 square. यहां पे 2 डिवाइड्स a square हो रहा था, यहां पे 2 डिवाइड्स b square होगा. ये जो है ना b square is equal to 2a1 square, इसका टेक्निकल मतलब है b square is made up, b square is made, चुप હું પાછો આવીશ. b square is equal to 2a1 square का मतलब है that b square is made up of 2 and 2 a1s, a1 a1. तो if b square is made up of 2 a1 and a1, then we can write 2 divides b square. And 2 divides b square अगर लिख सकते हो तो 2 divides b भी होता है, which is रोमन नंबर 2. ये तुम्हारा दूसरा पड़ाव. और अब therefore from 1 and 2, 2a को भी डिवाइड कर सकता है, 2b को भी डिवाइड कर सकता है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 2. बट हमने स्टार्टिंग में लिखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 1. तो लिखो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन. हमने जो अज्यूम किया था ये उससे विपरीत है. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption. Therefore our assumption is wrong. Therefore root 2 is not rational. हमारा assumption wrong है. हमारा assumption था स्टार्टिंग में let root 2 is equal to rational. root 2 is not rational, therefore root 2 is irrational. 3 बार कंटिन्यूअस एक सम कर लो ना तो मस्त दिमाग में बैठ जाता है. और मैं 3 बार करके दिखाऊंगा, तुम साथ में लिखना. एवरी टाइम आई डू आई स्पीक लेस, एक्सप्लेन लेस एंड राइट मोर. अंत्या बाय हार्ट समझो. यहां पे कुछ पूछना है तो आप पूछो. नहीं
एक खास ध्यान रखना, ये √2 का सम था, a इज इक्वल टू 2a1 लिया था। अब 5 का सम करेंगे तो a इज इक्वल टू 5a1 लेंगे, अपने आप याद आ जाएगा। लिखो प्रूव। એક વાર પાછળ કરો ને સ્લાઇડ એકવાર √2 પછી છેલ્લે ત્યારપર કરીને તમે શું કરી લખ્યું હતું? તું રેકોર્ડેડમાં જો લે, શું છે જોવું તારે, બોલ। કરો થોડું પતી ગયું, તો જાઓ આગળ। સર એક તો તારું નેટવર્ક મારા જેવું છે। √5 રેશનલ પ્રૂવ करना है। स्टार्ट द सम। लेट √5 is equal to a by b be a rational number। ब्रैकेट में therefore b not equal to 0 and highest common factor HCF of a and b is 1। therefore b सामने मल्टीप्लाई, √5 b is equal to a, square both the sides, 5b square is a square, therefore 5 divides a square and therefore 5 divides a। ये तुम्हारा पहला पड़ाव। अब क्या पॉइंट आउट किया था, लेट क्या करोगे, तो 5 का सम है, लेट a इज इक्वल टू 5a1, square both the sides, a square is 25, a1 square, and substitute the value of a square from left side। 5b square is 25, a1 square, 525 cut, b square is 5, a1 square, therefore 5 divides b square, therefore 5 divides b। ये तुम्हारा दूसरा पड़ाव। लास्ट पार्ट फ्रॉम 1 and 2। highest common factor of a and b looks like 5 because 5 is able to divide both। this is a contradiction to our assumption, therefore √5 is irrational। थोड़ा सा कम लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज द बेस्ट मेमोरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रोसीजर। टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो इसी चीज़ का ऐसे राइटिंग है, पथेटिक। इंग्लिश में ऐसे लिखता ना, राइट एन ऐसे ऑन काओ, वैसे उन लोग ने राइट एन ऐसे ऑन प्रूव इरेशनल लिखा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रीटेड लाइक अ सम। और पेपर चेकर्स गुजरात के ही है, पेपर बनाने वाला गुजरात का है, और लास्ट 15 साल से यही मेथड सीखते थे। एनसीईआरटी में मेथड अलग हो गई है, बट डोंट बॉदर, डू दिस, एंड इफ समबडी डजंट गिव यू मार्क्स इट इज देयर प्रॉब्लम, दे आर रॉन्ग। ओके, वेरिएशन। सो नाउ वी विल नॉट डू फुल सम, आई विल क्विकली शो यू सम वेरिएशंस। लिखो प्रूव 5 minus √3 irrational। let 5 minus √3 is equal to x be a rational number। therefore minus √3 is equal to x minus 5 is rational number। therefore √3 is equal to minus x plus 5 is rational number। therefore let √3 is equal to a by b
where b is not 0 and HCF is 1. सिर्फ 2-3 सेंटेंस एक्स्ट्रा लिखने. whenever you have a sum which is not straightforward, उसको x मान लो और पूरा इरेशनल है. the 5 minus root 3 is x and both are rational. let both are rational. तो रैशनल नंबर का रूल है कि जब तुम इज इक्वल टू के इधर उधर चीज़ें करोगे तो भी रैशनैलिटी गायब नहीं होती. तो मैंने 5 को सामने भेज दिया, फिर भी रैशनल है. -√3 को √3 बना दिया, फिर भी रैशनल है पूरी चीज़. इसका मतलब ये एक अकेला भी रैशनल है, और ये एक अकेला रैशनल है तो वो a/b है. नाउ यू स्टार्ट द सम. सो जस्ट मेक अ बिग एरो हियर दैट यू हैव टू डू फुल मेथड. उसके बाद क्या लिखोगे? therefore √3 is irrational. और जैसे ही √3 irrational हो गया तो √3 irrational तो ये irrational, ये दोनों irrational तो ये दोनों irrational तो ये दोनों irrational, मतलब क्वेश्चन इज irrational. डायरेक्ट लिख देना है therefore 5 minus √3 is irrational. Any questions? I'll show you 2 more sums like this. No, sir. But whatever it is, x ले आने का सीन में. And not every teacher will teach like this. ना ये टेक्स्ट बुक में है. But गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स, टीचर्स, everybody is used to this. क्योंकि लास्ट સર ईयर એકવાર પાછળનું એક વસ્તુ પૂછવી છે. હાજી પાછળ હા બોલ. સર આ 1 અને 2 લખવું કમ્પલસરી છે? બધું કમ્પલસરી છે. કમ્પલસરી ના હોત તો લખાવત. તને કીધું બ્લુ શર્ટ પહેરીને બેસ, કીધું નહીં ને? કારણ કે કમ્પલસરી નથી. કમ્પલસરી હોત તો કીધું હોત. પ્રૂવ लिखो 3√6 plus 2 irrational. To solve this sum, let 3√6 plus 2 is equal to x be rational. Therefore 2 को मैं सामने ले जाऊंगा, is also rational. रैशनैलिटी जाएगी नहीं. 3 को सामने डिवाइड कर दूंगा, इज ऑल्सो रैशनल. घूम फिर के therefore √6 इज रैशनल. और अगर √6 रैशनल है, therefore let √6 इज इक्वल टू a/b से तुम्हारा सम शुरू होता है. सम खत्म कहां होगा? therefore √6 is irrational पे. therefore √6 is irrational. तो √6 irrational तो ये पूरी चेन irrational, जो लिखना ही नहीं है. डायरेक्ट राइट therefore 3√6 plus 2 is irrational. Ask if you have any questions. સર +√2 +√3 હોય તેને કેવી રીતે સોલ્વ કરવાના? એ નેક્સ્ટ આ છેલ્લો સમય જ बताऊं છું હવે કે આ બધામાં એક રૂટ હતા તો નંબર સામે મોકલો અને એ રૂટનો સમ પતાવી દેવાનો. एक चीज इसमें क्या करोगे? प्रूफ √32 इरेशनल. इसमें 2 चॉइस है तुम्हारे पास, क्या करोगे? 4√2. एग्जैक्टली. या तो नॉर्मल सम खत्म कर दो, √3 किया, √5, √7 या √32, या फिर √32 को सिंप्लीफाई कर दो 4√2 एंड 4√2 का x/4. हाँ x/4 करके √2 का सम. तो बोथ आर सेम बट यू शुड नो. एंड व्हाट ध्रुव आस्क्ड द लास्ट वेराइटी इज इफ दे आस्क प्रूव, ये लिख लो, प्रूव √5 प्लस 2√3 इरेशनल. तो जब 2 रूट होता है तो स्क्वायर करना पड़ता है. लेट √5 प्लस 2√3 इज इक्वल टू x बी रैशनल.
तो जब दो रैशनल नंबर होते हैं सामने सामने, उसको स्क्वायर करो तो रैशनैलिटी गायब नहीं होती, विच मीन्स यू आर अलाउड टू स्क्वायर बोथ द साइड्स विदाउट डिस्टर्बिंग द रैशनैलिटी. तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल. लास्ट टाइम किया था. हु कैन गिव मी डायरेक्ट आंसर? सीधा एक परफेक्ट आंसर. 5 plus 4 root 15 plus आंसर, डायरेक्ट आंसर. 17 प्लस 17 plus 4 root 15 is rational. अब 17 को सामने भेज दो तो 4 root 15 is equal to x square minus 17 is rational. 4 को डिवाइड कर दो तो root 15 is equal to x square minus 17 upon 4 is rational. અંતે ખબર પડી કે સમ रूट 15 નો છે. तो पूरा प्रोसीजर रूट 15 का करना है. कुछ लोग रूट 5 रूट 3 दोनों करते हैं, बट द करेक्ट मेथड इज दिस. रूट 5 को अलग, रूट 3 को अलग नहीं. स्क्वायर इट एंड प्रूव रूट 15 इरैशनल. अपने आप पूरी चेन इरैशनल प्रूव हो जाएगी. एनी क्वेश्चंस? टेक्स्ट बुक में आगे जाते हैं. एक्सरसाइज 1.3 प्रूव इरैशनल. प्रूव. हाँ बोलो. Sir, આમાં એક છે b is not equal to 0 and NCF ab is equal to 1. Sir, हाँ. એ સ્ટેટમેન્ટ કમ્પલસરી લખવાની. એબ્સોલ્યુટલી. એ રેશનલ હોવાનો અધિકાર છે. દુનિયાનો કોઈ બી રેશનલ નંબર, જ્યારે બેસિક મેથ્સ ભણતા હતા ત્યારે રેશનલ નંબર એટલે p બાય ક્યુ, અને p બાય ક્યુ એટલે 2/3, 4/11, 5/7. પણ જ્યારે 7/0 કર્યું તો કેલ્ક્યુલેટર, કમ્પ્યુટર અને મગજ ખરાબ થઈ ગયું. યુ कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग विद जीरो. तो साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस को लगा कि ये एक प्रॉब्लम है. ये 7/0 इज नॉट अ रैशनल नंबर. इसलिए वो लोग ने एक नई प्रैक्टिस चालू की. दुनिया का हर p बाई क्यू रैशनल है जब तक q 0 नहीं है. दूसरी चीज, 2/3, 4/6, 8/12, 10/15 પણ સર બી 0 નીકળે તો એ ચાલે. ઉપરનું 0 હોય તો ચાલે, તો બી આ રેશનલ જ રહેશે. પણ નીચે 0 હોય તો રેશનલ નથી રહેતો. એટલે આ કન્ડિશન પેદા થઈ. અને બીજું, મેથેમેટિશિયન્સે જોયું કે 2/3 આ કટ કરો તો 2/3, કટ કરો તો 2/3, આ બી 2/3. તો સાચો આન્સર કયો માનવાનો? આ. 2/3. હા, કોઈ બી નાનું છોકરું 10/15 આન્સર લખીને આવે તો એના માર્ક્સ કપાય. કારણ કે રેશનલ નંબરના ડેફિનેશનમાં લખેલું છે that cancellation is a must. एंड मैथमेटिशियंस को लाइफ कॉम्प्लेक्स करने में बहुत मज़ा आता है. तो हम बोलते हैं इसको कैंसलेशन. वो बोलता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 and 3 is 1, therefore it is correct. But can I say highest common factor between 10 and 15 is 1? No, it's 5. Highest common factor between 8 and 12 is 4. इसलिए ये रैशनल नंबर्स है लेकिन सिंप्लीफाइड नहीं है. तो जब मैं ए और बी लेता हूँ तो वो सबसे सिंपल वर्जन है. इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन आगे जाके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है 2, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए इरैशनल है, वगैरह वगैरह. इससे ज़्यादा समझाऊंगा तो तुम मैथमेटिशियन बन जाओगे, और मैथमेटिशियन बेचारा पैसे नहीं कमा सकता, तो तुम गरीब रह जाओगे. इसलिए मैं नहीं कराऊंगा. और रूट 5 इरैशनल 1/√2 यूनिक सम क्या करोगे? સર 1/√2 ને a/b ના ફોર્મમાં કરી દઈએ તો ચાલે ને? ओके, लेट 1/√2 is equal to a by b be rational. હા સર હા. સર એને પછી? ઉપર લઈ લેજો અને એ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી b √2a.
ફ્લિપ કરી નાખો √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ b બાય a સામે લઈ જઈને આખી પ્રોસિજર કરો થઈ જશે પણ થોડુંક કન્फ्यूजिंग હોઈ શકે આ ઊંધું થઈ ગયું છે हमारे पास सेकंड ऑप्शन है किसी को ट्यूबलाइट हो रही है सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन ना B is √2a. rationalize the denominator એક એવો હથિયાર છે જેમાં તમારા ક્વેશ્ચનની વેલ્યુ નથી બદલાતી इट इज मैथमेटिकली सेम बट लुक्स डिफरेंट इसके लुक्स देखो और इसके लुक्स देखो तो ये दोनों अलग है बट मैथमेटिकली सेम है तो अब √2/2 નો ફાયદો શું તો √2/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x 2 સામે જતો રહ્યો અને પછી √2 નો સમ કરી દેવા એમાં કે ઊંધું નથી થતું એટલે जो करो वो सत्य वचन है लेकिन ध्यान से करना ये उल्टा करने के चक्कर में पूरा सम स्वैप हो जाता है डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक बिना कैलकुलेट किए कैसे पता चलता है कि डिवीजन का आंसर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डू यू रिमेंबर डेसिमल में खाली 2 અને 5 હોવું डेसिमल में नहीं डिनोमिनेटर में तो कोई भी p by q का डिनोमिनेटर इज मेड अप ऑफ 2s एंड 5s तो रिजल्ट इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग अब बाय हार्ट કરી લો ફરીથી બતાવું છું કોઈ પણ p by q ફોર્મમાં જો તમારો ડિનોમિનેટર 2s અને 5s થી બનેલો હોય તો એનું રિઝલ્ટ ટર્મિનેટિંગ આવશે અને 2s અને 5s થી બનેલો નંબરનો મતલબ ફક્ત 2 થી બનેલો 2 4 8 16 32 64 एक्सेट्रा फक्त 5 થી બનેલો 5 25 125 625 3125 एक्सेट्रा 5 અને 2 ના કોમ્બિનેશન થી બનેલો 10 40 80 160 200 100 500 1000 it's an infinitely big family देख के पता चलना चाहिए कि ये 2s 5s की फैमिली है और अगर है तो आंसर टर्मिनेटिंग और अगर एक भी चीज एक्स्ट्रा आ गई फॉर एग्जांपल 60 के अंदर 2 है 5 है एक और 2 है लेकिन 3 है एंड दिस 3 स्पॉइल्स एवरीथिंग सो 11/60 और 11/50 एक सेकंड लगती है समझने को कि दिस इज टर्मिनेटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर लेट्स चेक लाइव कैलकुलेटर दिख रहा है नंबर दिख रहा है यस सर 11/50 0.22 टर्मिनेटिंग 11/60 0.18333333 एक और सवाल 231/50 60 अपॉन 50 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टर्मिनेटिंग और ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टर्मिनेटिंग अभी जस्ट 5 सेकंड पहले बोला कि 60 के अंदर 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग प्रूफ भी दिखाया बट એના ये માટે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે ना कहूँ જોઈ લો પહેલા તો કે आई एम नॉट फेकिंग इट 231/50 4.62 टर्मिनेटिंग 231/60 3.85 टर्मिनेटिंग तो अचानक कैसे टर्मिनेटिंग हो गया द रीजन इज 60 के अंदर जो कचरा था 3 जिसकी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था वो यहां पे कैंसल हो जाता है तो टेक्निकली 231/60 इज 77/20 and 77/20 में 20 is made up of 2s and 5 therefore it's a terminating number तो कभी भी
Moral of the story, I played a game with you deliberately. Moral of the story is look at the denominator, but after cancelling. Cancellation के बाद सोचो. Before cancelling, if you think, you will be misguided. Terminating क्योंकि 3125 5 से बनाओ. Terminating, this is only 2's. Non-terminating recurring, because मुझे पता है कि 5s और 2s के डेटाबेस में 455 आता ही नहीं. इसमें क्या एक्स्ट्रा है वो मुझे नहीं पड़ी, बट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग. वी कैन चेक 64 अपॉन 455 1406593 406593 406593 रिपीट होता. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बिकॉज 343 में 2 ही नहीं है तो कुछ और है. 7 है. 777. टर्मिनेटिंग मेड अप ऑफ 2s and 5s. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग 5 सत्ता से अंदर क्या थी टर्मिनेट था. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट के पागलों की तरह अंधाधुंध डिनोमिनेटर को मत देखो, क्योंकि 15 को देखोगे तो लगेगा कि इसके अंदर 3 है, बट दैट 3 गेट्स कैंसल्ड विथ 6 and 2/5 is definitely terminated. 77,210 बोलो. Terminating. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्योंकि आई अंडरस्टूड तुमने 7 पकड़ लिया कि 7 तो कट थे जैसे ना 7 11 जा 730 जा, लेकिन 3 बच गया. એટલે मेंटल मैथ्स की एक लिमिट होती है. लिख के करना जो भी करो. क्या है रैशनल और इरैशनल पूछा है. सो दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर, देयरफॉर इट इज रैशनल. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर. ये 01 001 0001 401 देयरफॉर इरैशनल. और ये है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर रैशनल. तो वी हैव 7 minutes तो प्रूव दैट सम्स तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट आई विल गिव यू दैट नेसेसरी ओवरव्यू अबाउट द बेस ऑफ प्रूव दैट सम्स करने के लिए क्या समझ में आना चाहिए. एक सिंगल फैक्ट समझ में आना चाहिए कि लेट x वेर x represent any number, इसके सिवाय इनफाइनाइट ऑप्शंस है अज्यूम करने के. तो अब तक 10th तक हमारे सारे काम लेट x एट द मैक्स लेट x एंड y, लेसन नंबर 4 क्वाड्रेटिक नहीं, लेसन 3 लीनियर इक्वेशन में लेट x बी द एज ऑफ राजू, y बी द एज ऑफ रामू, x बी टेंस डिजिट, y बी यूनिट्स डिजिट, x स्पीड ऑफ रिवर, y स्पीड ऑफ बोट. z तक कभी पहुंचे नहीं है, बट तुम लेट एक्स वाई जेड कर सकते हो, लेट ए बी सी डी कर सकते हो, या फिर x विच रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग. x 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. बट दूसरा ऑप्शन है लेट 2q एंड 2q प्लस 1. इसको q मान लो, तो अभी q की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, x की जगह q है. नाउ 2q एंड 2q प्लस 1 टुगेदर represent all numbers, real numbers. For example, I'm very bad at this. अभी लेटेस्ट में तो कोई बैंड पता है, बैंड के मेंबर्स होते हैं, एक गिटारिस्ट, एक ड्रमर. So if somebody asks 5 जन को सामने खड़ा करके who is the band,
यू कैन नॉट पिन पॉइंट 1% दैट ही इज द बैंड. वो पांचों मिल के बैंड बनाते हैं. वैसे और इसे हु रिप्रेजेंट्स द बैंड, 5 people represent the band who are the members. वैसे who represents the real numbers? These two together. दोनों. एक भी मिसिंग है तो सारे रियल नंबर कवर नहीं होंगे. अब कैसे कवर हो रहे हैं? लेट q इज इक्वल टू 1. अगर q 1 है तो ये भाई साहब 2 और ये 3 है. अगर q 0 है, q 0 तो 2 zeros are 0 1. अगर Q2 है तो 2 2s are 4, 2 2s are 4 plus 1 5. अगर Q3 है 2 3s are 6, 2 3s are 6 plus 1 7. मतलब ये दोनों मिलके ये भाई साहब इवन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, ये ऑड डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और दोनों मिलके assumption कंप्लीट हो जाता है. This is the second option. Similarly, the third option is 3q plus 1, 3q plus 2. एक बहुत stupid example दे रहा हूं. Prove that all numbers are waterproof. Prove that all numbers are waterproof. तो मैं मेरा पूरा सम x के साथ खत्म कर सकता हूं. लेट या q के साथ. लेट q represent all numbers, blah 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 blah. q is waterproof, therefore all numbers are waterproof. बट अगर मैंने नंबर्स को 2q और 2q plus 1 अज्यूम किया तो मुझे 2 बार प्रूव करना पड़ेगा. वी हैव टू प्रूव 2q family as waterproof and then again 2q plus 1 as waterproof. But if I have assumed my numbers in the form of 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2, तो मुझे 3 बार प्रूव करना पड़ेगा कि ये तीनों वाटरप्रूफ है, तो ही सारे रियल नंबर्स दुनिया के वाटरप्रूफ हैं. What do they represent? अगर q 0 है तो ये 0 1 2. अगर q 1 है तो ये 3 4 5. Q2 है तो 6 7 8 9 10 11. तो मुझे पूछा कि प्रूव दैट रियल नंबर्स आर वाटरप्रूफ. अगर मैं सिर्फ 3q को वाटरप्रूफ कर दूं तो आई एम नॉट प्रूविंग ऑल नंबर्स. कुछ रह जाते हैं. 3q plus 1 भी करूं तो भी कुछ नंबर रह जाते हैं. तीनों को प्रूव करना पड़ेगा. एंड दिस सीरीज गोज ऑन फॉर एवर. I can take 5q series. So 5q plus 1, 5q plus 2, 5q plus 3 and 5q plus 4. ये 5 band members together represent the band which is real numbers. और ये representation एक बार समझ में आया तो next lecture में काम easy हो जाएगा. So this is where we stop. See you next time. अगर तुमको कुछ भी डाउट है आज के लेक्चर में तो या तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो जो अभी का अभी मैं अपलोड कर दूंगा. एंड सेकेंड ऑप्शन इज इफ यू आर गोइंग टू कॉल मी फॉर एनीथिंग प्लीज कॉल आफ्टर 9 o'clock बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस 2. तो थोड़ा खाऊं पीऊं चिल मारूं फिर 9 बजे से वापस एट योर सर्विस. असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा. उसका डेडलाइन है कल रात 12 बजे तक. तो प्लीज सबमिट इट. इट विल बी ओपन फॉर सबमिशंस बट फिर उसमें लेट टैग हो जाएगा. तो हो सके तब तक कल ख़त्म करो. स्कूल एग्ज़ाम है या कोई इमरजेंसी है तो 2 दिन बाद. सी यू डे आफ्टर. बाय सर. बाय सर. बाय. हाय सर. बाय सर. हाय सर.